Hello everyone. Today we are starting a new topic, that is oversubscription. Which topic we are going to start today? Oversubscription. Already first day only I had explained you. Oversubscription means, what do you mean by oversubscription? Anybody can tell me? When we are asking less and we are getting more. Suppose I had issued 9,000 shares, but I received 12,000 shares. So this 3,000 extra shares what I received is called oversubscription. So oversubscription meaning is clear. What is oversubscription? When company is asking less, issuing less, but public is applying more. So we received 12,000 shares. So whatever difference is there, so that extra shares is called as oversubscription of shares. Okay? Till now we have done fully subscription, that means whatever we have issued that much only we received. Second, we have done under subscription last class only, where we have asked more but we receive less. So when we are receiving less and we are issuing more, so that situation is called as under subscription. Now third situation, when we are issuing less and we are receiving more, so that situation is called as oversubscription. So meaning is clear. What is oversubscription? When we are receiving more than the issuing application, so that is called oversubscription. I had already written that we have issued 9,000 shares, but we are receiving 12,000, means public had applied for 12,000. So we have asked less, but we are receiving more. So that 3,000 extra shares were called as oversubscription. Means what we extra received, that is called oversubscription of shares. Now oversubscription meaning is clear. What is oversubscription? अब आपको ओवर जो मिला है, ज़्यादा जो मिला है, इसकी तीन सिचुएशन होती है. फर्स्ट सिचुएशन, वी विल रिफंड देयर मनी बैक. वी विल रिफंड देयर मनी. हम उनकी मनी उनको क्या कर देंगे? वापस कर देंगे, जितने लोगों ने हमें एक्स्ट्रा शेयर्स दिए हैं. सेकेंड ऑप्शन होता है प्रोरेटा अलॉटमेंट. प्रोरेटा अलॉटमेंट मीन्स we are going to adjust their money in next call. So we are not refunding their money. We are not refunding their money back. We are adjusting it in next installment. Meaning is clear now. What is pro rata allotment? Pro rata allotment means जब हमें ज़्यादा मिलती हैं, जो ज़्यादा एप्लीकेशंस मिली हैं, हम उनका पैसा उनको वापस ना कर हम उनके पैसे कहाँ एडजस्ट कर देते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में. तो उस चीज़ को कहा जाता है आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट. गॉट इट? व्हाट इज प्रोरेटा अलॉटमेंट? स्पीक अप, यस और नो. Pro rata allotment, already I had mentioned clearly, we are not refunding their money back. Means हम उनके पैसे वापस नहीं करते. We are adjusting it in next installment. तो next installment जो आती है उनके पैसे हम उसमें adjust कर देते हैं. That is called pro rata allotment. Now got it? What is pro rata allotment? Yes, ma'am. Yes. So
हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन टोटल मनी रिफंडेड फुली, उनकी मनी क्या कर देंगे, रिफंडेड देयर मनी फुल, पूरा पैसा हम उनका वापस कर दे रहे हैं. सेकेंड प्रोरेटा, हम वापस ना कर कर अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दे रहे हैं. थर्ड सिचुएशन बोथ टुगेदर, मीन्स ये दोनों सिचुएशन आपकी एक साथ होगी. पार्शियली refunded and partially adjusted in next installment. तो जहां हम पूरा पैसा रिफंड ना कर कर हम आधा रिफंड कर रहे हैं और आधा एडजस्ट कर रहे हैं, दैट इज द थर्ड सिचुएशन. So all 3 situations are clear now. What are the 3 situations arises when we are getting more applications than the issued application? Clear all the 3 situations or not? Meaning is clear? Yes, miss. Okay. So anyone out of you all, please say. Already it is mentioned on the board. You have to only see and speak. Anyone please speak all the 3 situations. What is oversubscription? Meaning of oversubscription? Meaning of oversubscription, we issued more and issued less and received more is oversubscription. Yes, good. Then And refund, this money is full, and pro rata allotment, we are not refunding their money back, we are adjusting in it an installment, and partially refund and partially adjusted is next installment. partially refund and partially adjusted in next installment. Okay, beta. So Tanya, you had spoke. So all these things are clear to everyone. Lovely, it is clear. Bhumi, it is clear. Chanchal, it is clear. Yes, ma'am. Okay. So now we are doing the numericals. Concept is clear to everyone. Now we are starting the numerical. Now one thing, I am explaining the question. Whenever there is oversubscription, we have to make one rough work. Rough table we are going to make. With the help of that, it will be easy to do. So question number 39. To provide employment to the youth and to develop Baramulla district of Jammu and Kashmir, Jyoti Power Limited decided to set up a power plant. For raising funds, the company decided to issue shares. तो हमारा टेबल जो बनेगा, इन दैट फर्स्ट कॉलम इज इशूड. तो कितने शेयर्स इशू करे हैं आपने? 8,50,000 शेयर्स इशू करे हैं. 10 रुपीज का एक शेयर है, 3 रुपीज प्रीमियम, मतलब एक शेयर की टोटल वैल्यू कितनी हो गई है? 13 रुपीज. इतने में कोई दिक्कत है? And this full amount we received on application. तो जब हम पूरा पैसा एक साथ मांग लेते हैं तो वो कौन सी सिचुएशन होती है? लमसम की इंस्टॉलमेंट. Yes, so we have asked full money together, so it is a lump sum situation. So here the whole amount is payable on application, but application received for 20 lakh shares. आपको एप्लीकेशंस कितनी रिसीव्ड हुई हैं? 20 लाख की एप्लीकेशंस मिली हैं, जिसमें इनने कहा है एप्लीकेशंस फॉर 3,000 वर रिजेक्टेड. तो इसके बाद हम अगला कॉलम बनाते हैं, अप्लाई
allotted and adjusted, जिसमें इनने सीधे कहा है आपको 3 लाख एप्लीकेशंस को आपने रिजेक्ट कर दिया है, मतलब एक भी नहीं रखी, बाकी का प्रोरेटा हुआ है। प्रोरेटा का मतलब समझा रही हूँ फिर से, अब एक बार समझ लो। पहले जो मैंने लिखा है इतना सबको क्लियर है? क्वेश्चन में आपको कहा है आपने कितने शेयर्स इशू करे, 8,50,000 शेयर्स, तो वो हमने इशू के कॉलम में लिख दिया। आपने रिसीव्ड कितनी करी है एप्लीकेशन, 3 लाख, तो हम 20 लाख, तो 20 लाख एप्लीकेशंस हमने कहाँ लिख दी हैं, कौन से कॉलम में लिखी 20 लाख? ठीक है, फर्स्ट कॉलम इज फॉर इशू, सेकेंड कॉलम इज फॉर रिसीव्ड, थर्ड कॉलम हम उसमें बनाते हैं अप्लाई, अलॉटेड एंड एडजस्टेड। तो अप्लाई करी है 3 लाख एप्लीकेशंस, उनको रिजेक्ट ही कर दिया है, तो उसके सामने सीधा निल लिख दिया। बाकी उनने कहा है प्रोरेटा अलॉटमेंट हुई है, तो अब मीनिंग समझो। अभी इतने टेबल में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके, सो नाउ लिसन, अप्लाई वाले कॉलम में हमें टोटल कितना लिखना है, 20 लाख, और अलॉटेड वाले कॉलम में हमें टोटल कितना लिखना है, जितना 8,50,000। मतलब अप्लाई हमेशा रिसीव के इक्वल होगा, अलॉटेड हमेशा इशू के इक्वल होगा। सो 20 लाख में से 3 लाख माइनस करो तो कितना बैलेंस बचेगा, 17 लाख बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ऐसे ही। 8,50,000 में से निल माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 8,50,000 ही बचेगा। टेबल आया समझ में बेटा, कैसे टेबल बनाया हमने? ओके, सो नाउ यहाँ आपको कहा है आपने निल एक भी एप्लीकेशन नहीं रखी, मतलब ये जो 3 लाख एप्लीकेशंस हैं इनका पैसा कहाँ जाने वाला है, बैंक में रिफंड हो जाएगा। 17 लाख में से 8,50,000 को माइनस करो, कितना बचेगा, 8,50,000 ही बचेगा। अब एक कंसेप्ट मुझे बताओ, आप पूरे के पूरे पैसे एक साथ मांग रहे हो, प्रोरेटा का मतलब क्या है, अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना। प्रोरेटा का मतलब यही समझाया ना, अभी मैंने नोट दिया था, दैट एक्स्ट्रा मनी इज टू बी एडजस्टेड इन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज प्रोरेटा। बट हेयर फुल 13 रुपीज यू आर कॉलिंग एट in a single installment, so whether any next installment is there, tell me, next installment है क्या? so हमें इनका पैसा क्या कर देना चाहिए, जब हम पूरा पैसा एक साथ मांग रहे हैं तो एक्स्ट्रा शेयर्स पूरे पैसे उनके क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएगा ना। तो जब हम पूरे पैसे एट अ टाइम मांगते हैं तो एक्स्ट्रा वॉट एवर मनी इज देयर, सो दैट एक्स्ट्रा मनी वी हैव टू रिफंड देम। सो दिस 8,50,000 मनी विल ऑल्सो बी गोइंग टू रिफंड। तो टोटल रिफंडिंग कितनी हो रही है, दोनों को ऐड कर लो, तो 11,50,000 की मनी आप क्या कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो। पहली एंट्री आप क्या लिखते हो लमसम में, पहली एंट्री क्या लिखते हो लमसम में, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बस yes, share application and allotment. So bank account debit to share application and allotment. Second entry हम क्या लिखते हैं, share application and allotment
account debit to share capital. यही एंट्री सीखी है कि और कुछ सीखा है? यही सीखा है ना अभी तक आप लोगों ने? एंट्री में कोई डाउट? पहली एंट्री क्या कहती है? हमें इतने पैसे मिले। तो बताओ आपको कितने पैसे मिले हैं? सेकेंड एंट्री में प्रीमियम भी खोलना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम भी है, खोलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये प्रीमियम भी है और ये कैपिटल है। तो सबसे पहले आपको कितने पैसे मिले हैं? 20 लाख। तो आप 20 लाख को 13 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट एंट्री में। बोलिए, फर्स्ट एंट्री के अमाउंट में डाउट? इज इट ओके? यस मैम। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में भी हम यही लिखेंगे, 20 लाख इंटू 13। आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखोगे, मैं अभी वैल्यूज लिख रही हूँ, आपको वहां अमाउंट लिखना है। शेयर कैपिटल कितने से मिलेगा? जितने आपने शेयर्स इशू करे हैं। तो 8,50,000 इशू करे हैं इंटू 10, और प्रीमियम भी हम उन्हीं से लेंगे 8,50,000 इंटू 3। अब ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उनको हम सेकेंड एंट्री में ही रिफंड कर देंगे। तो जब पैसे आए तो बैंक डेबिट हुआ, जब पैसे जाएंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने शेयर्स से? 11,50,000 इंटू टोटल 13 रुपीज रिफंड हो जाएंगे। Now tell me, question is over. Who is having any of the confusion? Then just now you can ask. Anybody is having any doubt? Ma'am, please repeat this bank entry. See, both the entries I am repeating. First entry, bank to share application and allotment. Here the money will be going to receive by the shares you have received. So you received 20 lakh shares. So 20 lakh into total money you are getting 13 rupees. So we will be multiplying by 30. So 20 lakh into 13, that is 36 lakh it will be going to come. Second entry, we are doing share application and allotment to share capital to SPR, security premium reserve, because it is a sum of premium. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन ना होता तो हम सिंपल दिस मच एंट्री वी आर पासिंग, बट नाउ देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स यू रिसीव्ड मोर मनी, तो दैट मनी यू हैव टू रिफंड. तो आपको जब फर्स्ट एंट्री में मनी आई थी तो यू हैव डेबिटेड बैंक. अब आपको मनी रिफंड करनी है तो यू हैव टू क्रेडिट बैंक, एंड टू बैंक वी विल बी राइटिंग वॉट एवर अमाउंट वी आर रिफंडिंग. So we are refunding 1,15,000 shares, total 13 rupees. So with that amount we have written to bank credit. Now clear? Yes, ma'am. Okay. First I am making table. See how I am going to make table, and then we will be starting journal entry. Next question, Symphony Limited. देखो हमारा कॉलम क्या होता है? फर्स्ट कॉलम क्या रहता है? Tell me the headings. First column is, second column Receive. and third column apply
allotted minus allot and adjusted. क्या आ जाएगा? एडजस्टेड एक्सेस शेयर भी लिख सकते हो. एक्सेस शेयर जो है वो कहाँ एडजस्ट करेंगे वो चीज हम लिख रहे हैं थर्ड में. सो टेबल headings are clear. What is your first heading? What is your second heading? yes ma'am. Okay, so now we are starting some. Tell me how much we are going to write in issued. इशू में हम कितना लिखेंगे बेटा? 50,000. Yes, good. 50,000. Issued is 50,000 shares. One share is of 100 each. जिसमें आप 20 ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है, वो भी कितने रुपीस की? 25 रुपीस की. और फिर 30 रुपीस आपके फर्स्ट कॉल पे हैं. बैलेंस बताओ कितना होगा? फाइनल कॉल का बैलेंस कितना आ जाएगा? 100 रुपीज का शेयर है. 25 यहाँ मांगे, 30 यहाँ मांगे. टोटल कितने कॉल्ड आप कर लिए? 45. Yes, 45 is your balance. So balance 45 will be going to come in final call. इतना भी समझ में आया? अब बताओ एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई हैं? 80,000. So 80,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं. उनने क्या कह दिया है? प्रो रेटा अलॉटमेंट करना है सारी एप्लीकेशंस का. तो प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? जस्ट नाउ आई हैड एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट. We are not refunding their money back and adjusting in next installment. यस. सो यहाँ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है? आपकी फर्स्ट कॉल है, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट वी आर टेकिंग टुगेदर. सो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज फर्स्ट कॉल. दैट मीन्स वी आर एडजस्टिंग देयर मनी इन फर्स्ट कॉल. आया समझ में? तो अब कितना एडजस्ट करेंगे? हमारे पास अप्लाई कितनी है? 80,000 एप्लीकेशन है. हमें अलॉट कितनी करनी है? 50,000. तो एक्स्ट्रा कितनी बची? 30,000. तो इस 30,000 को आपको कहाँ भेजना है? फर्स्ट कॉल में. टेबल इज क्लियर और नॉट? टेल मी बेटा, टेबल इज क्लियर और नॉट? Yes ma'am. Ma'am, why first call? Because application and allotment together we are asking. application allotment एक साथ मांगी है, तो नेक्स्ट कॉल कौन सी है? फर्स्ट कॉल. तो जो भी नेक्स्ट कॉल होगी उधर पैसे एडजस्ट कर दिए जाते हैं. Okay ma'am. ओके, बट क्वेश्चन अभी भी एंड नहीं हुआ है. क्वेश्चन में एक लास्ट सेंटेंस रीड करो और दिया है. When the first call was made, a shareholder who had applied 4,000 shares did not pay the call money. तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे 4,000 शेयर्स अप्लाई हैं, उनने फर्स्ट कॉल की मनी नहीं दी. क्वेश्चन आया समझ में? क्या कहा है क्वेश्चन में? ठीक है कि नहीं? अभी हम ये 4,000 वाले को रोक दे रहे हैं, उस अप्लाइड वाले का कुछ नहीं कर रहे हैं. पहले आप सिंपल सम करना सीखो, नहीं तो एकदम से हॉच पॉच हो जाएगा. दिस सेंटेंस वी आर लीविंग. पहले सिंपल कैटेगरी सीखिए क्या करना है. सो फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मांगी है. बताओ कितने शेयर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे? 25.
25,000 कैसे? 25 80,000 into 25. यस, एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू मनी, तो आप 80,000 इंटू 25 करोगे। जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव्ड होती हैं उनको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सेम अमाउंट यहाँ पे भी आएगा और सेम अमाउंट यहाँ पे भी आएगा। कैपिटल में हम हमेशा कितना भेजते हैं? इशूड। तो आपने इशू कितने करे हैं? 50,000 इंटू 25। बताइए, पहले इतना क्लियर हुआ, फिर आगे एक चीज और समझाऊं। आया समझ में इतना? Yes. अब देखो, आपने एनालिसिस टेबल में जो भी नाम लिखा होगा, लास्ट सम में हमने एनालिसिस टेबल में यहाँ बैंक लिखा था, तो हमने सेकेंड एंट्री में बैंक लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में हमने एनालिसिस टेबल में फर्स्ट कॉल लिखा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? आया समझ में? टेबल में हम जो भी लिखते हैं, जहां पे भी एडजस्ट करते हैं, उसको हम सेकेंड एंट्री में लिख देते हैं। तो कितने शेयर्स हैं? वो 30,000 शेयर्स हैं, और इन 30,000 शेयर्स ने आपको कितने पैसे दिए हैं? एप्लीकेशन मनी दी है। तो इतनी मनी आपकी कहाँ एडजस्ट हो रही है? फर्स्ट कॉल में। अब बताइए, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. Now next entry, due entry. Tell me what will be the due entry for the first call? Share first call account debit to share capital. अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा शेयर्स आए थे, हम फर्स्ट और सेकेंड एंट्री में एडजस्ट कर चुके हैं। बाकी अब हमारा सम किससे होगा? इशू से, जिससे हम करते हैं जितनी एप्लीकेशन हमने मांगी। तो 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी, 50,000 इंटू 30। बोलिए, ये एंट्री भी क्लियर है? Clear or not? Yes. Clear ना? Now receive entry. Receive की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो, फर्स्ट कॉल में आपको मिलने कितने हैं? 15 लाख रुपए, जिसमें से आपको फर्स्ट कॉल में कितने पहले ही मिल चुके हैं? 7,50,000 मिल चुके हैं। तो अब आप माइनस करो। सेकेंड एंट्री में देखो फर्स्ट कॉल लिखा है और थर्ड एंट्री में भी फर्स्ट कॉल लिखा है। तो थर्ड को सेकेंड से माइनस करो, जो बचेगा उतना पैसा आपको फोर्थ कॉल में मिलेगा। क्योंकि हमने ड्यू करा है फर्स्ट कॉल में कि हमें 15 लाख मिलने हैं, बट सेकेंड एंट्री में हमारे पास पहले से 7.5 लाख हमने फर्स्ट कॉल के नाम पे एडवांस में डाल चुके हैं। तो अब आपको कितने पैसे मिलेंगे? बैलेंस अमाउंट। तो इस 7,50,000 को इस 15 लाख से माइनस करो, जो बचेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। Now tell me, clear? Yes, ma'am. Okay. To everyone it is clear? Yes, ma'am. Now final call due entry. Yes, ma'am. So final call due entry, simple entry, what we are doing, that we will do share final call to share capital। 50,000 शेयर्स हैं इंटू 45 और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल सबने दे दिए, तो 50,000 इंटू 45।
Now sum is clear how to do. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. So I'm giving one question to everyone, same category, you have to do in your homework. Tomorrow new condition I am going to explain. First this much should be clear to everyone, then only I will be going to explain next condition. Okay? कि एक और करवा दूं? जैसे मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, अभी मैं बुक का क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको अपने आप से एक क्वेश्चन बना के दे रही हूँ. आप लोग ओरली मुझे एंट्री बताओगे क्या कहाँ जाएगा. चलो बताओ कॉल में कितना बैलेंस आएगा. 3. ठीक है. अब आपने 60,000 60,000 एप्लीकेशंस इशू करी हैं, आपको रिसीव्ड हुई हैं 1 लाख, जिसमें से फर्स्ट 10,000 एप्लीकेशंस को आपने रिफंड कर दिया है. नेक्स्ट 90,000 एप्लीकेशंस को आपने 60,000 एप्लीकेशंस दी हैं. तो अब ये चीज समझ लो, अगर टेबल ऐसा बनेगा तो जिसके सामने भी आपने नील लिखी है, दैट मीन्स उनका पैसा पूरा 10,000 शेयर्स कहाँ हो जाएंगे? बैंक में. इसमें से इसको माइनस करो, 30,000 शेयर्स अगली कॉल में चले जाएंगे. तो अगली कॉल कौन सी है? अलॉटमेंट. दैट मीन्स 30,000 शेयर्स का पैसा कहाँ चला जाएगा? अलॉटमेंट में. क्वेश्चन समझ में आया? आपको 10,000 शेयर्स नील कहा है, दैट मीन्स टोटली रिफंडेड. और जो कहा है नेक्स्ट 90,000 शेयर्स, उनमें से आपने 60,000 शेयर्स रखे. 30,000 कहाँ चले जाएंगे? अलॉटमेंट में. अब एंट्रीज में ये रब करके सुधार रही हूँ. आप मुझे बताइए अमाउंट किस में कितना आएगा और क्या क्या लिखा जाएगा. टेल मी. फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होगी, कितने से मल्टीप्लाई करोगे? रिसीव से कि इशू से? 1 lakh into 4. यस, पहली एंट्री हमेशा रिसीव से होती है. दैट मीन्स 1 लाख इंटू 4. यहाँ पे भी सेम अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे भी सेम अमाउंट आ जाएगा. कैपिटल में कितना भेजते हैं? रिसीव्ड की इशूड? कैपिटल में हम हमेशा इशूड भेजते हैं. सो हमारा इशू कितना है? 60,000. सो 60,000 इंटू एप्लीकेशन मनी. अब टेबल में हमने बैंक भी लिखा है, अलॉटमेंट भी लिखा है, तो सेकेंड एंट्री में हम यहाँ पे 2 बैंक भी लिखेंगे और 2 शेयर अलॉटमेंट भी लिखेंगे. टेबल में जो जो लिखा होगा वो आप सेकेंड एंट्री में ओपन कर दोगे. आया समझ में क्या करा मैंने? इज इट क्लियर? नाउ बैंक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 बैंक में एप्लीकेशन मनी से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 30,000 अलॉटमेंट है,
उसको भी एप्लीकेशन मनी से ही मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. Is it okay to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Now third entry क्या होगी? Share allotment to share capital. और fourth entry क्या होगी? Bank to share allotment. अब पूरा सम किससे होगा? इशू से. तो 60,000. Ma'am, your voice is not clear. Now third entry will be share allotment to share capital, and fourth entry will be bank to share allotment, and now full sum will be done through issued क्योंकि extra shares we have adjusted. So now full sum will be done through third entry will be done through issued shares, and issued share is 60,000. So 60,000 into allotment money. Third entry it will be going to come. Fourth entry, now क्या करेंगे? थर्ड एंट्री में आपको 4,80,000 मिलने हैं, जबकि ऑलरेडी सेकेंड एंट्री में आप लिख चुके हैं अलॉटमेंट के नाम से. दैट मीन्स आपको 1,20,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं. तो अब आप दोनों को माइनस करोगे और फोर्थ एंट्री में आप लिखोगे 3,60,000. बाकी सिंपल जैसा सम करते हैं वैसे ही करेंगे. Here it is coming amount 4,80,000, and already you received here 120. So subtract this value from this value. Whatever is coming, that will be going to come here. Keep studying.